Tradition 7. Every AA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. Self-supporting alcoholics? Who ever heard of such a thing? Yet we find that's what we have to be. This principle is telling evidence of the profound change that AA has wrought in all of us. Everybody knows that active alcoholics scream that they have no troubles money can't cure. Always we have had our hands out. Time out of mind, we have been dependent upon somebody, usually money-wise. When a society composed entirely of alcoholics says it's going to pay its bill, that's really a news. Probably no A tradition had the labor pains this one did. In early times, we were all broke. When you add to this the habitual supposition that people ought to give money to alcoholics trying to stay sober, it can be understood why we thought we deserved a pile of folding money. What great things AA would be able to do with it. But oddly enough, people who had money thought otherwise. They figured that it was high time we now, sober, paid our own way. So our fellowship stayed poor because it had to. There was another reason for our collective poverty. It was soon apparent that while alcoholics would spend lavishly on 12-step cases, they had a terrific aversion to dropping money into a meeting place hat for group purposes. We were astounded to find that we were as tight as the bark on a tree. So AA, the movement, started and stayed broke, while its individual members waxed prosperous. यहाँ से कंटिन्यू करूं हिंदी में या Yeah, you can ओके take one more paragraph. ओके Alcoholics are certainly all or nothing people. Our reactions to money prove this. As AA emerged from its infancy into adolescence, we swung from the idea that we needed vast amounts of money, vast sums of money, to the notion that AA shouldn't have any. On every lip were the words, "You can't mix AA and money." We shall have to separate the spiritual from the material. We took this violent new tack because here and there members had tried to make money out of their AA connections, and we feared we would be exploited. Now and then, grateful benefactors had endowed clubhouses, and as a result, there was sometimes outside interference in our affairs. We had been presented with a hospital, and almost immediately the donor's son became its principal patient and would-be manager. One A group was given $5,000 to do with what it would. The hassle over that chunk of money played havoc for years. Frightened by these complications, some groups refused to have a cent in their treasuries. आज लकी जी बिजी हैं तो मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूं फिर से। ट्रेडिशन 7 स्वयं निर्भर शराबी। किसी ने ऐसा सुना है कभी? लेकिन हम पाते हैं कि हमें ऐसा ही बनना पड़ता है। यह सिद्धांत इस गहरे बदलाव का प्रमाण है जो ए ने हम सबके अंदर लाया है। सब जानते हैं कि सक्रिय शराबी हमेशा यही चिल्लाते रहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसे पैसे ने हल ना किया जा सके। हमेशा से हमने किसी न किसी के सामने हाथ फैलाया है। बरसों से हम अक्सर पैसे के मामले में दूसरों पर निर्भर रहे हैं। जब पूरी तरह शराबियों से बनी एक संस्था यह कहती है कि वह अपने बिल खुद भरेगी, तो यह वाकई बड़ी खबर होती है।
शायद किसी भी ए परंपरा को उतनी मुश्किलें और जन पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी जितनी इस परंपरा को। शुरुआती दिनों में हम सब कंगाल थे। ऊपर से हमें हमेशा यह आदत थी कि उन शराबियों को पैसे सोबर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता था कि हम मोटी रकम पाने के हकदार हैं। सोचते थे ए उस पैसे से कितने बड़े काम कर सकेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जिन लोगों के पास पैसा था उनका विचार कुछ और ही था। वो समझते थे कि अब जबकि हम सोबर हो गए हैं तो यह सही समय है कि हम अपने खर्चे खुद उठाना सीखें। हम इस तरह हमारी फेलोशिप गरीब ही रही इस तरह हमारी फेलोशिप गरीब ही रही क्योंकि उसे गरीब रहना ही था। हमारी सामूहिक शराबी हमारी सॉरी हमारी सामूहिक गरीबी का एक और कारण भी था। बहुत जल्दी यह साफ हो गया कि शराबी 12वें कदम के मामलों पर खुलकर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब तक बैठक में टोपी घुमाकर समूह के कामों के लिए पैसे देने की आती है तो उन्हें भयंकर झिझक होती थी। हम हैरान थे यह देखकर कि हम लोग पैसे देने के मामले में पेड़ की छाल जितने कंजूस थे। इस तरह एए एक आंदोलन के रूप में शुरू भी कंगाल हुआ और कंगाल ही रहा, जबकि इसके व्यक्तिगत सदस्य धीरे धीरे संपन्न होते गए। शराबी सचमुच सब या कुछ भी नहीं वाले लोग होते हैं। पैसे के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं यह बिल्कुल साबित करती हैं। जब एए अपनी शौशवावस्था इन्फेंसी से निकलकर किशोर अवस्था एडोलेसेंस में प्रवेश कर रहा था, हम एक छोर से दूसरे छोर पर झूल गए। पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। फिर अचानक यह सोच उभारी कि ए के पास कोई पैसा होना ही नहीं चाहिए। हर जुबान पर यही शब्द थे, ए और पैसा एक साथ नहीं चल सकते। हमें आध्यात्मिक और भौतिक चीजों को अलग रखना होगा। हमें यह कठोर रुख इसीलिए अपनाया क्योंकि कुछ सदस्यों ने अपनी ए संबंधों से पैसे कमाने की कोशिश की थी और हमें डर था कि कहीं हमारा शोषण न होने लगे। कभी कभी आभारी शुभचिंतकों ने क्लब हाउस बनवा कर दे दिए और परिणाम यह हुआ कि वे लोग हमारे मामलों में दखल देने लगे। हमें एक अस्पताल भी भेंट में मिला था और लगभग तुरंत ही दाता का बेटा उसका मुख्य मरीज और स्वयं घोषित प्रबंधक बन बैठा। एक एए समूह को $5000 दे दिए गए थे कि वे अपनी इच्छा से उसका उपयोग करें। उस रकम को लेकर हुई खींचातानी ने वर्षों तक समूह की शांति छीन ली। इन जटिलताओं से डरकर कुछ समूहों ने तो अपने खजाने में एक भी पैसा रखने से इनकार कर दिया। ओवर टू यू भूषण जी। थैंक यू। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ और भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से आज का दिन शराब के पहले गुण से दूर हूँ। तो दोस्तों देखते हैं ये जो ट्रेडिशन हमने पढ़ी इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या कहता है। द AA groups themselves ought to be fully supported by the voluntary contributions of their own members। यानी AA समूह को अपने जो भी खर्चे हैं वो अपने सदस्यों द्वारा आने वाले जो कंट्रीब्यूशंस है उसी में से उनके खर्चे पूरे होने चाहिए। वी थिंक दैट ईच ग्रुप शुड सून अचीव दिस आइडिया। हमें लगता है कि बहुत जल्द
हमारे सभी समूह पूरी तरह से स्वावलंबी हो जाएंगे. That any public solicitation of funds using the names of Alcoholics Anonymous is highly dangerous, whether by groups, clubs, hospitals, or other outside agencies. That acceptance of large gifts from any source or of contributions carrying any obligation whatsoever is unwise. तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों के पास से पैसे लेकर ए का नाम इस्तेमाल करके लोगों के पास से पैसा लेना, ये हमारे लिए बहुत ही धोखादायक हो सकता है. फिर वो भले समूह हो, हमारे क्लब्स हो, हॉस्पिटल्स हो, या और कोई आउटसाइड एजेंसीज हो, जो जिसके वजह से हम किसी एक एक जगह से या किसी एक आदमी से या इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़े गिफ्ट्स ले सके, और ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस कैरिंग एनी ऑब्लिगेशंस व्हाटसोएवर इज अनवाइज. यानी कि कोई भी कंडीशन डाल के दिया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है, भले वो फिर ए मेंबर क्यों ना हो, अगर ए मेंबर बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपया दे देता हूं लेकिन मुझे पीआई चेयरमैन बनाओ, तो वो भी नहीं चलेगा. कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, इज अनवाइज. Then too, we view with much concern those aid treasuries which continue beyond prudent reserves to accumulate funds for no stated a purpose. इसके बावजूद हमारे कुछ समूहों में जो पैसा जमा होते जाता है, ढेर सारा पैसा एक समूह के अकाउंट में किसी भी कारणवश या कारण के बगैर जमा हो जाता है, तो इसके प्रति हम हमेशा ही चिंतित रहते हैं. Experience has often warned us that nothing can so surely destroy our spiritual heritage as futile disputes over property, money and authority. हमारे अनुभव ने हमको बताया है, हमको चेतना दी है, हमको समय से ही चेतावनी दी है कि हमारा जो आध्यात्मिक जो तत्व है हमारे, ये पैसा, प्रॉपर्टी या अथॉरिटी के ऊपर से होने वाले झगड़े ये हमारी आध्यात्मिकता को खत्म कर देंगे. तो ये ऐसा थोड़ा सा लंबा सा ये डिस्क्रिप्शन है, और उसके हर एक टुकड़े को हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करेंगे दोस्तों. ये जो पहला वाक्य है, द ए ग्रुप्स देमसेल्व्स ऑट टू बी फुल्ली सपोर्टेड बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ देयर ओन मेंबर्स. दोस्तों, ये लगभग 1937 की बात है. मार्च महीने में एक्रोन में एक मीटिंग हुई थी. ये मीटिंग में लगभग 17 लोग मौजूद थे, और उन्होंने अपना स्टॉक लिया था कि हम लोग क्या हासिल किया है. 35 में हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हो गई, और लगभग 2 साल होने को थे जब मार्च महीने की ये मीटिंग थी. और जब उन्होंने देखा तो वो बड़े खुश हो गए, और उनको लगा यार, हम जो एक एक व्यक्ति जो मर जाना चाहिए था, वो ना कि सिर्फ बचा हुआ है, बल्कि हमारी संख्या बढ़ रही है. हम हर प्रकार के पीड़ित शराबी को बचा पा रहे हैं, कितनी भी गई गुजरी अवस्था में से भी लोगों को हम लोग ठीक कर पा रहे. तो हमारे हाथ में कुछ ऐसा अद्भुत लग चुका है. ये एक शराबी जब दूसरे शराबी के साथ में बात करता है, ये एक अद्भुत श्रृंखला ऐसी निर्माण हो जाती है कि बात बताने वाला भी शराब से दूर रहता है, सुनने वाला भी दूर रहता है, और जो सुनने वाला है वो सुनकर समझकर सामने वाले को भी बता के उसको भी मुक्त कर सकता है. तो ये अजीब सा हमारे पास में एक अद्भुत सा हमारे पास में एक शराबियत जैसे मामले पर एक सॉल्यूशन मिला हुआ है, और ये सॉल्यूशन जो है ये पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए. और अगर दुनिया तक पहुंचना है तो उसके लिए बड़े पैमाने पर पैसा लगेगा.
और उनको ऐसे लगा कि यार अच्छे अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल और साइकेट्रिस्ट लोगों को जो काम साध्य नहीं होता है वो काम हम कर सक रहे हैं, तो क्यों नहीं पैसा मिलेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास में ढेर सारा पैसा जो है वो अच्छे कर्मों के लिए खर्च करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो हमारी समाज के प्रति जो हमारा देना बनता है वो देने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति हमेशा से तत्पर रहे हैं। तो क्यों नहीं ये भी हमारे साथ में खड़े रहेंगे, तो हम बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करेंगे। और पैसा इकट्ठा करेंगे तो क्या करेंगे। तो वो टाइम पे जो सपने थे सामने इनके कि हम लोग शराबियों को कोई हॉस्पिटल में एडमिट करना नहीं चाहता है, तो हम खास शराबियों के लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। शराबियों के कुटुंबियों को भी बहुत तकलीफ में से जाना पड़ता है, तो हम उनके कुटुंबियों को आसानी से नौकरियां मिल सके या बिजनेस स्टार्टअप हो सके, इसके लिए हम लोग मदद करेंगे। हम लोग शराबी के प्रति सिंपथी यानी आत्मीयता के जरिए निर्णय लिए जाए, इसके लिए कोर्टों में वकालत करेंगे या गवर्नमेंट में पॉलिसी भी बनाएंगे। ऐसे कई सारे सपने उनके साथ में थे, और उनमें से एक सपना छोटा सा हल्का सा था कि हमारे सभी जो शराबी भाई है इनके अनुभव एक किताब रूप में छपने भी चाहिए। तो बिल्डब्ल्यू कहते हैं कि बाकी सभी जो हमारे बैंकरप्ट आइडिया जो थी, यानी पैसे के अभाव में से हमने जो देखे हुए जो सपने थे वो तो कोई हुए नहीं पूरे। खाली एक ही सपना पूरा हुआ, वो था हमारी किताब बनाना और हमारे बिग बुक का छपना। तो वो जो शुरुआत के जो दिन थे उन दिनों में हमेशा मीटिंग्स होती थी, वो किसी न किसी दयालु जो इन शराबियों के पहचान में से था, जिसका कोई एक्स्ट्रा घर हो या कोई हॉल हो। जैसे कि आप जानते हो कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग का कुछ समय तक गेट लॉज, जो हेनरिएटा साइबरलिंक की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वहां पर होती थी। और फिर कई सारे चर्चेस ने भी जगह दी थी, या कुछ ऐसे हितचिंतक थे जिनके यहाँ पर हमारी मीटिंग चलती थी। और इनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो कुछ पैसे दे के जगह बुक कर सके या हायर कर सके। ऐसी कोई इनके पास में क्षमता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे शराब बंद होने लगी, वैसे मेंबर्स के पास पैसा आने लगा। लोगों की आर्थिक स्थिति जो थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, और उनको ऐसे लगने लगा कि अभी हम अगर अपने कामकाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बिजनेसेस वापस सेटअप हो रहे हैं, हमारी नौकरियां दोबारा शुरू हो गई है, कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे उनका प्रोफेशन अभी ठीक से चलने लगा, तो अभी हमारा जो समाज में हमारी जो पहचान है, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है, उसके जरिए हम लोगों ने ए के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए। अब कुछ सदस्य ऐसे थे जिनको ये जो नैरो जो गैप थी कि हम ए के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या हम ए के नाम से खुद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये बड़ी नैरो सी गैप हो गई। क्योंकि हम में से कई अभी भी थे जो पैसे के लिए काफी भूखे थे। और फिर कुछ सदस्यों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम लेकर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि हमें हमारा ये जान बचाने वाला संदेश है, ये लाखों लोगों तक पहुंचाना है, तो आप मदद करें। इस प्रकार से पैसा लेना चालू कर दिया। और फिर वो जो पैसा कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी ग्रुप्स बड़े होने लगे, रिकवरी ज्यादा होने लगी और मीटिंग के लिए भाड़े से जगह लेनी पड़ने लगी, तभी क्लब्स की निर्मित हो गई। अब क्लब्स तो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड थे, यानी क्लब्स और ए ग्रुप्स अलग अलग होते थे,
लेकिन क्लब चलाने के लिए पैसा लेने में क्या हर्जा है? एक ग्रुप में भले कोई भी गरीब भी आए, 1 रुपया नहीं डाले तो समझ सकते हैं, लेकिन क्लब तो बिजनेस है और उसको चलाने के लिए तो पैसा लेना पड़ेगा। और अगर बाहर के लोगों से भी लिया तो क्या हर्जा है? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम लेकर कोई भी समूह हो या क्लब हो, या जो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया शुरुआत के दिनों में, जो कुछ प्रयास किए गए हॉस्पिटल्स या खास वार्ड्स जहां पर शराबियों को रखा जा सके और उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, ये ऐसे सभी जो उद्योग थे, जो व्यवसाय थे, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम पे शुरुआत के दिनों में चल रहे थे, ये सभी को बाहर का पैसा लेने से रोकने के लिए ये ट्रेडिशन जिम्मेदार रही दोस्तों। और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। जैसे आप जानते हो कि 1938 में अल्कोहलिक फाउंडेशन की स्थापना हुई, और वो जब स्थापना हुई थी वो टाइम पे उसका उद्देश्य यही था कि अभी हमारी किताब छपने वाली थी, और किताब छपेगी तो हजारों की संख्या में ये बिकेगी और बहुत सारा पैसा आएगा। और ये पैसा संभालने के लिए हमारे पास में जिनको नॉन अल्कोहलिक्स चाहिए, जिनको बाहर की दुनिया में पैसा संभालने की आदत हो या अनुभव हो, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। इस हेतु से जैसे फ्रैंक अमोस थे जो रॉकफेलर फाउंडेशन के एडवाइजर थे, ऐसे लोगों को हमने क्लास ए ट्रस्टी लिया था, क्योंकि हमारा डबल उद्देश्य था कि जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन इस प्रकार की चैरिटी का बहुत सारा काम करते थे, और हमें यकीन था कि ये इतना खूबसूरत काम हम लोग शराबी की जान बचाने का काम कर रहे, तो रॉकफेलर फाउंडेशन का हमको बहुत बहुत लाभ होगा। और इसी में फ्रैंक अमोस ने लीड लिया, बिल डब्ल्यू ने, और रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क शहर के सभी अमीरों का एक डिनर का प्रोग्राम बनाया। तो उन दिनों ये प्रथा हुआ करती थी कि कोई भी बड़ा उद्योजक हो, वो बाकी जो अमीर हुआ करते थे शहर के, उनको बुलाता था। कोई अगर कोई ऐसी नामचीन चैरिटी है, कोई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, तो ये सब लोग मिलकर इकट्ठा बड़ी मात्रा में पैसा जमा करते थे, ताकि यह चैरिटी पैसे के अभाव से नहीं रुके। तो इसी प्रकार से जब ही ये रॉकफेलर फाउंडेशन का जो डिनर का जो न्योता गया, तो न्यूयॉर्क के सभी बड़े बड़े अमीरों को इसमें इनवाइट किया था, और हमें लग रहा था कि अभी हमारी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म होने वाली है। वो डिनर भी एकदम अच्छी सी जगह पर, एक 5 स्टार जैसे होटल में, और बड़े प्लानिंग के साथ में राउंड टेबल्स बनाए थे। हर एक टेबल पर 5-7 लोग बैठेंगे, और हर एक टेबल पर एक आधा रिकवर्ड अल्कोहलिक होगा जो बाकी अमीरों के साथ में बात करेगा और उनको अपने कार्य के बारे में बताया। इस प्रकार से सबकी बैठने की रचना भी की थी। और उस कार्यक्रम में जॉन डी रॉकफेलर सीनियर नहीं आ पाए, लेकिन उनके बेटे उनका खत लेके वहां पर पहुंचे और उन्होंने सबका स्वागत किया, और उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तारीफ में कुछ शब्द कहे, और फिर उन्होंने एक बॉम्ब डाला। उन्होंने कहा, लेकिन पिताजी का, यानी अपने पिता का ये मानना है कि ये इतना खूबसूरत आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिसमें अगर पैसा आ जाए तो इसकी आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने व्यक्त किया कि हम समझते हैं कि ये कार्य के लिए भी पैसे की आवश्यकता है, और इसलिए उन्होंने एक मामूली सी रकम जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को डोनेट कर दी। और उनके सामने जो बिल डब्ल्यू, जो ग्रेप वाइन के आर्टिकल में ये पूरा प्रसंग बताते हैं, तो उनके सामने वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो हॉल छोड़ के चले गए, और हम वैसे के वैसे ही हाथ मिलते रह गए।
और वापस हमारे हाथ में पैसा नहीं का नहीं, लेकिन शायद ये हमारे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था। वो टाइम पे कुछ ही समय में जॉन रॉकफेलर ने एक $10,000 हमको दिए थे, जो हमारी किताबों का एडवांस और हमारे खर्चे चल सके इसके लिए एक लोन के जरिए उन्होंने दिए थे, ताकि ये काम जारी रह सके, बरकरार रह सके। इस हिसाब से उन्होंने वो पैसे दिए थे। तो अगले कुछ साल वही पैसे पर बिल और बॉब का घर वर्चुअली चल रहा था। $35 अ वीक ये सैलरी के ऊपर बिल डब्ल्यू खुद काम कर रहे थे। और तभी ये सब जो सदस्य थे, हमारे जो पायनियर मेंबर्स थे, उनके मन में ये श्रद्धा हो गई कि सचमुच पैसा, प्रतिष्ठा और पावर, ये तीनों से अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बचाना है तो हर एक ग्रुप को स्वतंत्र होना पड़ेगा। यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं होगी। हम लोग ईगो वाले लोग हैं, हम दूसरे शराबी की अथॉरिटी नहीं स्वीकारेंगे। और अनामिकता जो है वो हमारी प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हम सब निनावी रहेंगे। और पैसा जो है, हम पैसा भी नहीं लेंगे। जिंदगी भर हम लोगों ने हाथ फैलाया है लोगों के सामने। अभी हम सोबराइटी में हम किसी के पास से पैसा लेंगे नहीं, बल्कि हमारे पैसे से, भले धीरे धीरे काम होगा, हमारे पैसे से ही हम लोग हमारा कामकाज संभालेंगे। तो ये जो तत्व है, ये तत्व हमें ये ट्रेडिशन में से मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि पहली बार हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमें अपने पैसे से ही ये कामकाज चलाना पड़ेगा, हम बाहरी पैसा नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, वो टाइम की थोड़ी सी परिस्थिति आपको बताना हो तो ब्रुकलिन में जो बिल डब्ल्यू का घर हुआ करता था, उस घर में से उनको निकाला गया था। वो भाड़ा नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए उनको वो घर में से निकाला गया था। तो इतनी आर्थिक स्थिति गंभीर थी एक तरफ, और दूसरी तरफ ये आध्यात्मिकता की बातें चल रही थी। वैसे आप कभी न्यूयॉर्क जाओ और अगर एए की सैर करो, एए की टूर होती है, जीएसओ हमारा ऑफिस जो है वो एक एए के सभी हिस्टोरिक साइट्स की टूर कराता है। उसमें वो ब्रुकलिन का वो जो घर जहां से बिल डब्ल्यू को निकाला गया था, वहां पर भी लेके जाया जाता है। और हमें समझ में आता है कि क्या सैक्रिफाइसेस हमारे पायनियर्स ने और को फाउंडर्स ने हमारे लिए किए हुए हैं। बट ये ट्रेडिशन का जो मूलभूत तत्व है कि पीने के दौरान हमेशा हमारे हाथ फैले हुए थे, लेकिन अभी सोबराइटी में हम लोग किसी से पैसा नहीं लेंगे और किसी को भी हमारी हमारी टर्म्स डिक्टेट नहीं करने देंगे। दोस्तों, सोच लीजिए कि सपोज कल अगर समझो हमारे देश के कोई अमीर, जैसे कोई टाटा है या अंबानी है, समझो कल मुकेश अंबानी जी आपके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे क्या ये आप लोग किटी बॉक्स में 10-10 रुपया डाल के खेलते बैठते हो यार, छोड़ो ये सब, कहाँ स्कूलों वूलों में मीटिंगों में बैठते हो। एक काम करते हैं, मैं एक 100 करोड़ रुपया लगा देता हूँ, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों, 5 करोड़, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टीमेट है 5 करोड़ लोग हैं भारत में शराबी। तो अगर 5 करोड़ लोगों की जान बचानी है तो एक काम करते हैं, एक बड़ा सा ऑफिस लेते हैं, आपको सब एयर कंडीशन क्लासरूम देते हैं, आने वाले शहर शराबी को ये किटी बॉक्स वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सबको, आने वाले व्यक्ति को खाना पीना सब दे देते हैं, ये चैरिटी का काम है, आराम से हो जाएगा, हम लोग इतना कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या हम ये करने देंगे? तो शुरुआत के दिनों में कुछ ऐसे अनुभव आए थे जब भी इस प्रकार के प्रलोभन हमारे सामने आए थे, टेम्पटेशंस आए थे। लेकिन फिर अगर हमने किसी का पैसा ले लिया या किसी के पास से इतनी बड़ी गिफ्ट ले ली, तो फिर वो जो बोलेगा वही पूर्व दिशा होगी। फिर वो अगर बोलता है कि
भाई ऐसा है कि मैं एक धर्म के लोगों को यहाँ पर आने दे सकता हूँ, बाकी धर्मों के नहीं, तो झक मरा के हमको सुनना पड़ेगा। फिर वो अगर बोलेंगे कि भाई जो पढ़े लिखे हैं ना उन्हीं को हम लोग ले सकते हैं, जो अनपढ़ है उनको नहीं, तो उनकी बातों को हमको सुनना पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे कि देखो भाई आप आ तो सकते हो यहाँ पर, वो जगह तो फ्री रहेगी, लेकिन वहां पर आपको कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक लेना पड़ेगा जो 100 रुपए का होगा। तो दोस्तों फिर आपको लेना पड़ेगा। तो ये सभी जो हमारा जो फ्रीडम है, आज हम चाहे वहां मिल सकते हैं, कोई 2 या 3 शराबी एक साथ में आए तो अपने आप को ए का समूह बोल सकते हैं। किसी खुली जगह में भी बैठकर हम अपना ए ग्रुप चला सकते हैं। किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं, किसी की भी दादागिरी नहीं, किसी का भी पैसा नहीं लगा है, तो हम किसी को आंसरेबल नहीं है। तो ये जो स्टेटस है, ये जो हमारा जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम इसी वजह से है क्योंकि जो कुछ भी हम लोग करते हैं, हम लोग अगर एक छोटी सी तीसरी क्लास वाली कक्षा में आड़ा टेढ़ा बैठते, हमारे खुद के पैर वहां पर नहीं बैठते होंगे, लेकिन वहां पर मीटिंग में जो सात्विकता और जो जो मीटिंग का जो भाव व्यक्त होता है, उसको वो जगह से कोई मतलब नहीं होता है। वो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने आप को खोकर वहां पर सुनते हैं और अपना अनुभव कथन कर सकते हैं। ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम ये इसी वजह से है क्योंकि हमने किसी का भी ऑब्लिगेशन नहीं लिया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ओवर टू यू, चंदू। थैंक यू भूषण। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। Okay. Despite these misgivings, we had to recognize the fact that A had to function. Meeting places cost something. To save whole areas from turmoil, some offices had to be set up, telephones installed, and a full-time secretaries hired. Over many protests, these things were accomplished. We saw that if they weren't, the man coming in the door couldn't get a break. These simple services would require small sums of money, which we could and would pay ourselves. At last, the pendulum stopped swinging and pointed straight at Tradition 7 as it reads today. In this connection, Bill likes to tell the following pointed story. He explained that when Jack Alexander's Saturday Evening Post piece broke in 1941, thousands of frantic letters from distraught alcoholics and their families hit the foundation's letterbox in New York. Our office staff, Bill says, consisted of 2 people, one devoted secretary and myself. How could this landslide of appeals be met? We'd have to have some more full-time help. That was true, sure. So we asked the AA groups for voluntary contributions. Would they send us $1 a member a year? Otherwise, this heartbreaking mail would have to go unanswered. To my surprise, the response of the groups was slow. I got mighty sore about it. Looking at this avalanche of mail one morning at the office, I paced up and down ranting how irresponsible and tight-wad my fellow members were. Just then an old acquaintance stuck a two-slit and aching head in the door. He was our prize Flip. I could see he had an awful hangover. Remembering some of my own, my heart filled with pity. I motioned him to my inside cubicle and produced a $5 bill. As my total income was $30 a week at that time, this was a fairly large donation. Louis really needed the money for groceries,
But that didn't stop me. The intense relief on my friend's face warmed my heart. I felt especially virtuous and as I thought of all the ex-drunks who wouldn't even send the foundation $1 apiece. And here I was gladly making a $5 investment to fix a hangover. This meeting was that night was at New York's old 24th Street clubhouse. During the intermission, the treasurer gave a timid talk on how broke the club was. That was in the mix money and A. But finally he said the landlord would put us out if we didn't pay up. He concluded his remarks by saying, "Now boys, please go heavier on that hat tonight, will you?" I heard all this quite plainly as I was piously trying to convert a newcomer who sat next to me. The hat came in my direction. I reached into my pocket. Still working on my prospect, I fumbled and came up with a 50-cent piece. Somehow, it looked like a very big coin. Hastily, I dropped it back and fishing out a dime, which clinked thinly as I dropped it in the hat. Hats never got folding money in those days. Then I woke up. I, who had boasted my generosity that morning, was treating my own club worse than the distant alcoholics who had forgotten to send the foundation their dollars. I realized that my $5 gift to the Slippy was an ego feeding proportion, bad for him and bad for me. There was a place in A where spirituality and money would mix, and that was in the hat. There is another story about money. One night in 1948, the trustees of the fellowship were having their quarterly meeting. The agenda discussion included a very important question. A certain lady had died. When her will was read, it was discovered she had left Alcoholics Anonymous in trust with the Alcoholic Foundation a sum of $10,000. The question was, should AA take the gift? What a debate we had on that. The foundation was really hard up just then. The groups weren't sending in enough for the support of the office. We had been tossing in all the book income, even that hadn't been enough. The reserve was melting like a snow in springtime. We needed that $10,000. Maybe some said the groups will never fully support the office. We can't let it shut down. It's far too vital. Yes, let's take the money. Let's take all such donations in the future. We are going to need them. Then came the opposition. They pointed out that the foundation board already knew of a total of $500,000 set aside for A in the wills of people still alive. Heaven only knew how much there was we hadn't heard about. If outside donation weren't declined, absolutely cut off, then the foundation would one day become rich. Moreover, at the slightest intimation to the general public from our trustees that we needed money, we could become immensely rich. Compared to this prospect, the $10,000 under consideration wasn't much. But like the alcoholic's first drink, it would, if taken, inevitably set up disastrous chain reaction. Where would that land us? Whoever pays the piper is apt to call the tune, and if the A Foundation obtained money from outside sources, its trustees might be tempted to run things without reference to the wishes of A as a whole. Relieved of responsibility, every alcoholic would shrug and say, "Oh, the foundation is wealthy. Why should I bother?" The pressure of that fat treasury would surely tempt the board to invent all kinds of schemes to do good with such funds and so divert A from its primary purpose. The moment that had happened, our fellowship's confidence would be shaken. The board would be isolated and would fall under heavy attack of criticism from both A and the public. These were the possibilities pro and con. Bhushan, shall I finish this? Finish it. Then our trustees wrote a bright page of AA history. They declared for the principle
that AA must always stay poor. Bare running expenses plus a prudent reserve would henceforth be the foundation's financial policy. Difficult as it was, they officially declined that $10,000 and adopted a formal, airtight resolution that all such future gifts would be similarly declined. At that moment, we believed the principle of corporate poverty was firmly and finally embedded in a tradition. When these facts were printed, there was a profound reaction. To people familiar with endless drives for charitable funds, A presented a strange and refreshing spectacle. Approving editorials here and abroad generated a wave of confidence in the integrity of Alcoholics Anonymous. They pointed out that the irresponsible had become responsible and that by making financial independence part of its tradition, Alcoholics Anonymous had revived an ideal that its era had almost forgotten. हिंदी में पढ़ता हूं। इन सारी शंकाओं और संकोचों के बावजूद हमें ये मानना पड़ा कि ए को चलना तो पड़ेगा। मीटिंग के स्थानों पर खर्चा आता है। पूरे क्षेत्रों में अव्यवस्था से बचाने के लिए छोटे छोटे कार्यालय बनाने पड़े, टेलीफोन लगवाने पड़े और कुछ पूर्णकालिक सचिवों को काम पर रखना पड़ा। काफी विरोधों के बावजूद ये सारी व्यवस्थाएं की गई। हमने देखा कि अगर ऐसा ना किया जाता तो दरवाजे से अंदर आने वाले नए आदमी को कोई मदद नहीं मिल पाती। इन सरल सेवाओं के लिए थोड़ी सी धनराशि की आवश्यकता थी, जिसे हम खुद दे सकते थे और देते भी। आखिरकार पेंडुलम का झूलना रुक गया और यह सीधा आज की परंपरा 7 की ओर इशारा करने लगा, जैसा कि वह आज लिखी है। इस संदर्भ में बिल अक्सर बहुत अर्थपूर्ण कहानियां सुनाना पसंद करते हैं। वह बताते हैं कि जब जैक अलेक्जेंडर का सैटरडे इवनिंग पोस्ट वाला लेख 1941 में प्रकाशित हुआ तो हजारों परेशान शराबियों और उनके परिवारों के घबराए हुए पत्र न्यूयॉर्क स्थित फाउंडेशन के लेटर बॉक्स में आने लगे। बिल कहते हैं, हमारे ऑफिस का स्टाफ 2 लोगों का था, एक समर्पित सचिव और मैं खुद। इस अपार संख्या में आने वाले अपील पत्रों का जवाब कैसे दें? हमें कुछ और पूर्णकालिक मदद चाहिए थी, यह तय था। इसलिए हमने ए समूह को स्वैच्छिक योगदान मांगा। हमें प्रति सदस्य प्रति वर्ष $1 भेजेंगे, वरना यह दिल तोड़ देने वाली डाक बिना उत्तर के पड़ी रहेगी। मेरी हैरानी की बात यह थी कि समूहों की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। मैं इस बात पर बहुत नाराज हो गया। एक सुबह दफ्तर में इस पहाड़ जैसे जमा हुए पत्रों को देखते हुए मैं इधर उधर टहलता रहा और बड़बड़ाता रहा कि मेरे साथी सदस्य कितने गैर जिम्मेदार हैं और कंजूस हैं। उसी समय एक पुराना परिचित अपने बिखरे हुए बालों और दुखती हुई खोपड़ी के साथ दफ्तर के दरवाजे पे आया। वह हमारा पुरस्कृत स्लिपी था, बार बार फिसलने वालों में से सबसे आगे। उसके चेहरे में साफ था कि उसे भयंकर हैंगओवर है। अपने कुछ पुराने हैंगओवर याद करके मेरा दिल उसके लिए पिघल गया। मैंने उसे अपने क्यूबिकल में बुलवाया और $5 का नोट निकालकर उसे दे दिया। उस समय मेरी कुल आय सप्ताह की $30 की थी, इसीलिए $5 काफी बड़ी रकम थी। लुइस को घर के राशन के लिए वह पैसों की जरूरी थी, लेकिन इससे मुझे रोका नहीं गया। मेरे दोस्त के चेहरे पर आया गहरा राहत का भाव मेरे दिल को गर्म कर गया। मुझे अपने आप पर बड़ी नेकी महसूस हुई। जैसे ही मैंने उन सभी एक्स डाक्स के बारे में सोचा तो फाउंडेशन को $1 की भेजने
को तैयार नहीं थे, जो फाउंडेशन को $1 भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उस रात की मीटिंग न्यूयॉर्क के पुराने 24वें स्ट्रीट क्लब हाउस में थी। इंटरमिशन के दौरान खजांची ने झिझकिचाते हुए बताया कि क्लब कितना कंगाल हो चुका है। यह वह समय था जब ए और पैसा को मिलना सख्त मना था, लेकिन अंत में उसने कह दिया कि अगर हमने बकाया नहीं चुकाया तो मकान मालिक हमें बाहर निकाल देगा। उसने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की, अब भाइयों, आज रात टोपी में जरा भारी हाथ रखना। क्या आप रखेंगे? यह सब मैंने साफ साफ सुना, जबकि मैं बड़े धर्मपरायण भाव से अपने पास बैठे हुए नए सदस्य को ये समझाने की कोशिश कर रहा था। टोपी मेरी ओर आई और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। अब भी उस नए व्यक्ति को समझाते हुए मैंने उंगलियों से टटोलकर 50 सेंट का सिक्का निकाला। किसी तरह यह सिक्का बहुत बड़ा लग रहा था। मैंने तुरंत उसे वापस डाल दिया और एक 10 सेंट का सिक्का निकाला, जो टोपी में गिरते ही बहुत हल्की सी आवाज कर गया। मैंने उन दिनों किसी टोपी में कागज के नोट नहीं डालते देखे। तभी मेरी आंख खुली। मैं, जिसने सुबह अपनी उदारता और इतना ढिंडोरा पीट रहा था, अपने ही क्लब के साथ उनसे भी बुरा बर्ताव कर रहा था, जो दूर बैठे शराबी फाउंडेशन को $1 भेजना भूल गए थे। मुझे एहसास हुआ कि इस स्लिपी को दिया गया $5 सिर्फ अहंकार को खिलाने वाला काम था, जो उसके लिए भी बुरा था और मेरे लिए भी बुरा था। ए में एक ऐसी जगह थी जहां आध्यात्मिकता और पैसा मिल सकते थे, और वह जगह थी टोपी, द हैट, यानी किटी बॉक्स। पैसे से जुड़ी एक और कहानी है। 1948 की एक रात फाउंडेशन के एक ट्रस्टी अपने तिमाही बैठक कर रहे थे। एजेंडा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था। एक महिला का देहांत हो गया था। जब उनकी वसीयत खोली गई तो पता चला कि उन्होंने अपनी वसीयत में अल्कोहलिक्स फाउंडेशन के माध्यम से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए $10,000 की रकम छोड़ी थी। प्रश्न यह था, क्या ए को यह उपहार स्वीकार करना चाहिए? उस मामले पर कितनी बहस हुई। फाउंडेशन उस समय सचमुच बहुत तंगी में था। समूह ग्रुप कार्यालय को चलाने के लिए पर्याप्त योगदान नहीं भेज रहे थे। हमने किताबों की बिक्री से आने वाली सारी आमदनी भी लगा दी थी, फिर भी यह काफी नहीं पड़ रही थी। हमारा रिजर्व तो वसंत ऋतु की बर्फ की तरह पिघल रहा था। हमें उस $10,000 की सचमुच जरूरत थी। कुछ लोग कह रहे थे शायद समूह कभी भी कार्यालय का खर्च पूरी तरह नहीं उठाएंगे। हम इसे बंद तो नहीं होने दे सकते। यह बहुत जरूरी है। हाँ, हमें यह पैसा भी ले लेना चाहिए और भविष्य में भी ऐसे सभी दान स्वीकार करने चाहिए। हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। विपक्ष के तर्क। फिर विरोध करने वाले आगे आए। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन बोर्ड को पहले से ही कुल $5 लाख के बारे में पता था, जो कई जीवित लोगों ने अपनी वसीयतों में ए के लिए तय करके रखे थे। पता नहीं और कितना होगा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर बाहरी दान स्वीकार करना बंद नहीं किया गया, पूरी तरह रोका नहीं किया गया, तो एक दिन फाउंडेशन बहुत अमीर बन जाएगा।
इसके अलावा अगर हमारे ट्रस्टी यह संकेत भी दे दें कि ए को पैसों की जरूरत है, तो आम जनता हमें अत्यधिक धन देने लगेगी। इस संभावना की तुलना में वर्तमान $10,000 तो कुछ भी नहीं था, लेकिन शराबी के आगे पहले पेग की तरह अगर इसे ले लिया गया तो ये खतरनाक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होने का तय था। फिर हम कहां पहुंचेंगे? खतरे क्या थे? जो पैसा देता है संगीत वही बजवाता है। जो पैसा देता है संगीत वही बजवाता है। यह कहावत याद दिलाई गई। अगर ए फाउंडेशन बाहर से पैसा लेगा तो ट्रस्टी यह प्रलोभन महसूस कर सकते हैं कि वे ए के पूरे समुदाय की इच्छा को दरकिनार कर अपनी मर्जी से फैसला लें। जिम्मेदारी से मुक्त होकर हर शराबी यह कह देगा, फाउंडेशन तो अमीर है, मुझे क्यों फिक्र करनी चाहिए। मोटे खजाने का दबाव बोर्ड की तरह तरह की योजनाएं बनाने पर उकसा सकता था, जिनसे अच्छा काम तो दिखे लेकिन ये अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटक जाए। जैसा ही होता था, फेलोशिप का भरोसा टूट जाता, बोर्ड अलग अलग पड़ जाते और ए सदस्यों तथा जनता दोनों की भारी आलोचना झेलनी पड़ती। ये थे सब पक्ष और विपक्ष जिन पर चर्चा की गई। फिर हमारे ट्रस्टीज ने एक इतिहास का एक उजला पन्ना लिखा। उन्होंने यह सिद्धांत घोषित किया कि ए को हमेशा गरीब ही रहना होगा, सिर्फ चलाने के खर्च और विवेकपूर्ण प्रूडेंट रिजर्व, यही आगे से फाउंडेशन का वित्तीय नीति होगी। कितनी भी कठिनाई हो, ट्रस्टीज ने आधिकारिक रूप से उस $10,000 की रकम को ठुकरा दिया और एक कड़ी औपचारिक प्रस्ताव पारित किया कि भविष्य में मिलने वाले सभी ऐसे उपहार इसी तरह अस्वीकार कर दिए जाएंगे। हम मानते हैं कि उसी क्षण कॉर्पोरेट गरीबी का यह सिद्धांत ए की परंपरा में दृढ़ता से और स्थायी रूप से स्थापित हो गया। जनता व दुनिया की प्रतिक्रिया। जब इन तत्वों को प्रकाशित किया गया तो एक गहरा प्रभाव देखने को मिला। चैरिटिक फंड इकट्ठा करने वाली अनंत मुहिमों से परिचित लोगों के लिए ए का यह रुख बिल्कुल अलग और ताजगी भरा था। देश विदेश में संपादकियों ने ए की ईमानदारी पर इस लहर की तरह भरोसा जगाया। उन्होंने लिखा कि जो कभी गैर जिम्मेदार थे वे अब जिम्मेदार बन गए हैं, और यह कि वित्तीय स्वतंत्रता को अपनी परंपरा का हिस्सा बनाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने उस आदर्श को पुनर्जीवित किया है जिसे इस युग ने लगभग भुला दिया था। थैंक यू। थैंक यू चंदू। तो ये जो ट्रेडिशन और ये जो दो स्टोरीज है, इसमें से आज की तारीख में जो हमारे लिए जो रिलेवेंट चीजें हैं उनकी तरफ देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मीटिंग रूम में जब भी किटी बॉक्स घूमता है तो ज्यादातर जो पुराने सदस्य है वो दिखाते भी नहीं है कि वो अंदर कितना पैसा डाल रहे, यानी उन्होंने कितना दान उस दान पात्र में डाला हुआ है। ये कोई नया मेंबर देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे मुझे भी ज्यादा पैसा डालना चाहिए, या किसी भी प्रकार का बड़प्पन, मैं 500 के नोट डाल सकता हूं या 200 के नोट डाल सकता हूं, ये दिखा के जो बड़प्पन जो है ये मिलाने का जो प्रयास है ये नहीं होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये एकमात्र जगह है
जहां स्पिरिचुअलिटी एंड मनी मिक्स। तो मनी, पैसा तो चाहिए, पैसा हर चीज के लिए चाहिए। कई सारी जगह है जहां मीटिंग रूम का रेंट भी देना पड़ता है, बिजली का खर्चा भी देना पड़ता है। कई मीटिंगें ऐसी है, मैंने प्रदेश में देश में देखी हुई है, जहां पर एक आधा सैंडविच या चाय बिस्किट वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है, कॉफी और केक वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि वहां आने वाला शराबी शायद कुछ खा के आया होगा, नहीं होगा, किस हालात में होगा, जेब में पैसे होंगे नहीं होंगे, कम से कम वो वहां पर कुछ खाने को मिलने की आशा से तो आ सके। तो इस प्रकार से कुछ समूह के भी खर्चे होते हैं। और जो हमारी सेवाएं हैं, अब हम अगर बाहर से पैसा ले नहीं सकते हैं, तो ये सेवाओं का जो सपोर्ट है वो हमारे किटी बॉक्स में से आई हुई कलेक्शन, हमारे कंट्रीब्यूशन से ही हो सकता है। तो जहां हम लोग अनामिकता की बात करते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को दिया हुआ जो पैसा है, ये कोई रिपोर्ट में पब्लिश नहीं होता। कोई आपको जीएसओ, मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस ईयर करके कोई सर्कुलर या व्हाट्सएप मैसेज दुनिया भर में नहीं भेजता है। तो जो भी आप देते हो वो सेवाओं के प्रति एक सहयोग के तौर पर देते हो। कई बार हमारे यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग बोलते हैं कि आपकी किटी बॉक्स में आप अपने चाय का पैसा डालते हो और अपने बाजू वाले के चाय का पैसा डालते हो। जो नया मेंबर है, जो अपना शायद चाय का पैसा नहीं डाल सक रहा होगा, उसके लिए डालते हो। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, वो चाय पीना नहीं है या चाय पिलाना नहीं है, बल्कि कैरिंग द मैसेज टू द स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक, जो अभी भी पीड़ित शराबी है, उस तक ये संदेशा पहुंचाना, ये इसका हेतु है। तो हाँ, जो चाय सैंडविच बिस्किट का जो भी खर्चा है, ये समूह के खर्चे में होने की वजह से ये इसमें जरूर गिना जाएगा, लेकिन सिर्फ उतना ही हेतु हमारा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बोलता हूं कि आज लगभग अभी रिसेंटली मैं कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था और हमारे कुछ ट्रस्टीज के साथ में बात कर रहा था कि साल भर में अभी जीएसओ में लगभग किताबों का सेल और आने वाली कॉन्ट्रीब्यूशंस के और इससे उसका जो बजट है वो लगभग 80-90 लाख रुपए के आसपास का सालाना बजट है। यानी अगर मैं देखता हूं तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का महीने का बजट है। अभी ये 6 से 7 लाख में से आपका ऑफिस का भाड़ा और आपके स्टाफ का जो सैलरीज है वो जाने के बाद में, और वो जो किताबें हम लोग जो बेचते हैं, वो किताबों की छपाई की जो कीमत है, वो सब निकालने के बाद में हाथ में जो पैसा बचता है वो कोई ज्यादा पैसा नहीं बचता। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब भी हमारे देश का सबसे बड़ा पीआई इवेंट यानी सत्यमेव जयते का ये कार्यक्रम जब भी हो रहा था, तो हमें पता था कि ये कार्यक्रम आने वाला है, आमिर खान का ये शो होने वाला है और ये काफी सारे लोग भारतवर्ष में देखेंगे और शायद हजारों में कॉल्स आएंगे। तो हमने सोचा हमको तैयारी रखनी पड़ेगी, और हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जो भी कॉल आएगा उनको कम से कम हम लोग एक इंट्रोडक्टरी किट भेजते हैं। सो हमने एक 3 पैम्पलेट का सेट, और हमारे ही एक सदस्य थे जिनका कुरियर का व्यवसाय था, उनके साथ में रेट निगोशिएट किया कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर उसको डिलीवर करना होगा तो 15 से 20 रुपए में वो कुरियर पहुंचाएंगे। तो 3 पैम्पलेट्स, एक किताब, हमने सोचा था कि एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब, तो जहां पर ए का ग्रुप नहीं है या मीलों तक ए का मेंबर नहीं है, ऐसे लोगों तक भी ए का संदेश जाना चाहिए। तो एक एए की बिग बुक की किताब, साथ में इंट्रोडक्टरी पैम्पलेट और मीटिंग लिस्ट और उसका कुरियर का खर्चा, ऐसा मिला के
कुछ मेरे ख्याल से अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कुछ 80 या 100 रुपए के आसपास का एक कॉल के ऊपर खर्चा होगा। और हमने सोचा कि अगर 1,000-2,000 कॉल भी आते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए हमारे पास में होने चाहिए। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम होने से पहले सभी हमारे अंतर समूह थे उनको इन्फॉर्म किया कि भाई पैसा भेजो, ये बड़े पैमाने पे काम होने वाला है, बड़े पैमाने में इंक्वायरी आने वाली है और हमको सबको भेजना है, ये किट भेजना है। कुछ लोगों ने कुछ पैसे भेजे भी, मतलब कोई 3 लाख रुपए वगैरह नहीं जमा हुए, बट शायद 1,00,000-1,50,000 रुपए के आसपास में पैसे इकट्ठा भी हुए थे। और हम तैयारी में थे, मल्टीपल लाइंस ली थी एक नंबर के ऊपर और हम तैयारी में थे। सभी अंतर समूह को भी बताया गया था कि भाई जो आएंगे कॉल्स आपको डाइवर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो शो होने के बाद में लगभग 3 लाख कॉल्स वो इमीडिएटली आ गए। इमीडिएटली हमारी सब लाइंस वगैरह क्लॉग हो गई, हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई और ये लाखों में हमारे पास में डेटा आ गया, लोगों का ये आ गया। अब हमारा जो पूरा प्लान था वो पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि हमने हजारों की भी तैयारी पूरी तरह से नहीं की थी और लाखों में अगर रिस्पांस आएगा तो इनका क्या करे, इसके लिए हमारे पास में रिसोर्सेस ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने वो जो कॉल्स थे वो एरिया के हिसाब से अपने अपने अंतर समूह को बांट डाले और हमने भगवान को प्रार्थना की कि भाई जल्द से जल्द ये लोगों तक कोई ना कोई बात तो भी कम से कम करे, क्योंकि हम खत द्वारा या किताब द्वारा तो इन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मेन कारण अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने ये जो सेल्फ सपोर्ट, हमारी जो जिम्मेदारी है स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक को संदेशा देने की, ये जिम्मेदारी को हमने ठीक तरीके से समझा भी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि अमेरिका में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कोई भी डॉक्टर होगा, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा, साइकेट्रिस्ट होगा या रिहैब सेंटर होगा या काउंसलर होगा, ये सभी को हमारा इंट्रोडक्टरी लिटरेचर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाता है। हमारी जो मैगजीन है, हमारा जो न्यूज लेटर है बॉक्स 459 और हमारी मैगजीन है ग्रे पॉइंट, इनकी कॉपीज इन सबको बिना मूल्य भेजी जाती है। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो हमने एक बार कुछ साल पहले सिर्फ महाराष्ट्र का देखा था हम लोगों ने, तो बंबई में लगभग 3,000 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बंबई ठाणे मिलके हमको पता चले कि जो अलग अलग प्रकार के वैद्यकीय जो है वो, और अगर सिर्फ महाराष्ट्र का भी हम लोग बात करें तो हजारों में मेडिकल प्रोफेशनल्स है, तो पूरे देश भर में तो लाखों में मेडिकल प्रोफेशनल्स रहेंगे। अगर ये हर एक को एक खत भी भेजना होगा और एक मीटिंग लिस्ट भी भेजना होगा तो खाली पोस्टेज और वो पैम्पलेट का खर्चा मिलके ही 10-20 लाख रुपए के ऊपर का बजट हो जाएगा एक बार इन सबके पास हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो सरप्लस आता है, किताबों में से आने वाला सरप्लस और हमारे कंट्रीब्यूशन में से आने वाला सरप्लस है, उनमें से ये एक सिंगल एक्टिविटी भी पूरी नहीं हो सकती है। इसका मतलब अगर हमारी सर्विसेज कहीं पर शॉर्ट पड़ रही है, अगर आपके मन में सवाल आता है कि इतने साल हो गए हैं फिर भी बिहार में अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्यों नहीं फैल रही है, या यूपी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्यों नहीं फैल रही है, या राजस्थान में अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्यों नहीं फैल रही है, या वो 7 सिस्टर्स में नागालैंड में या त्रिपुरा में ये क्यों नहीं फैल रही है। तो दोस्तों, हमारी जो सेवाएं हैं, जो वहां पर जाकर एक ग्राउंड वर्क कर सके, वहां के डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को, साइकेट्रिस्ट को, सोशल वर्कर्स को जो इंफॉर्मेशन हम लोग दे सके, वो सेवाओं को सपोर्ट करने के लिए हमारी जो सातवीं परंपरा जो है वो कम पड़ती है। वो हमारी हम सफिशिएंटली कंट्रीब्यूट न करने की वजह से हमारे जो सेवाएं हैं वो अधूरे रह जाते हैं। और फिर हम लोग सोचते हैं यार इतनी बड़ी, कई बार मैंने ये सवाल देखा है कि यार 70-80 लोग एक कॉन्फ्रेंस करने को आते हैं और हर एक के ऊपर कम से कम 10,000 खर्चा होता है, 8-10
लाख रुपया हम लोग एक दिन का खर्चा करते हैं, 2 दिन में 20-25 लाख 30 लाख रुपया खर्चा करते हैं, क्यों नहीं हम लोग लोगों के ऊपर मैसेज देने के लिए, ये अगर 3 लाख 30 लाख रुपया हम लोग कॉन्फ्रेंस पे खर्चा करते तो 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया हम लोग क्यों नहीं बजट रखते हैं हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन का। दोस्तों, बजट तो रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी तरफ से सपोर्ट की जरूरत है। और वो कैसे बूंद बूंद से हौद बनता है, उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर हम लोग आज कहते हैं हम लोग कि भारत में लगभग 2800 के आसपास ग्रुप्स है और लगभग 50 से 60 हजार के आसपास सदस्य है। तो अगर ये 60 हजार सदस्य समझो हफ्ते में 2 मीटिंग करते होंगे और 10-10 रुपए डालते होंगे हर बार मीटिंग रूम में, तो एक हफ्ते के वो 60 हजार लोग इंटू 20 यानी 12 लाख रुपए के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है हर हफ्ते का पूरे भारतवर्ष में से होता है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन जो होता है, ये पूरा वो मीटिंग के खर्चे और चाय पानी इसी में चला जाता है, या मीटिंग की एनिवर्सरीज, बर्थडेज, ग्रुप के कार्यक्रम, नाइट विजिल्स, इसी में वो कार्यक्रम में वो पैसा जाता है। खाली 6 से 8% समूह जो है वो जनरल सर्विस ऑफिस को कंट्रीब्यूशन भेजते हैं, यानी सर्विसेज बियॉन्ड ग्रुप जो हम लोग कहते हैं, अंतर समूह और जीएसओ को जाने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। जो मात्रा में लोग ग्रुप्स हमारे अपने आप के ऊपर चाय पानी के ऊपर खर्चा करते, उससे कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इंटर ग्रुप्स को और उससे भी कम मात्रा में जीएसओ को ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। सपोज ये 60 हजार लोग हर हफ्ते 10 रुपए के बदले 20 रुपए देना शुरू करेंगे, तो ये अमाउंट है, ये 12 लाख के बदले 24 लाख रुपए हर हफ्ते की होगी, और बहुत बड़ी मात्रा में लगभग मतलब एक महीने का ही कंट्रीब्यूशन लगभग 1 करोड़ या 12 करोड़ के आसपास का हमारा बजट हो सकता है, जो आज लेस देन 1 करोड़ है। तो आपकी चाय मत पियो ये हमारा कहना नहीं है, चाय पियो, आपके इवेंट्स करो, आपके प्रोग्राम्स करो, सब कुछ करो, लेकिन इसके बावजूद जो स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक है और हमारी सेवाएं है, उनको सपोर्ट करने के लिए अगर हर एक सदस्य हर मीटिंग में एक 10 रुपए भी ज्यादा डालना चालू करे और ये पैसा अगर ये काम में लग जाएगा, तो बड़ी मात्रा में हमारी सेवाएं हो सकती है। ऐसे ही ये जो मैटर ऑफ विल्स एंड बिक्वेट्स का जो बात किया है, कि आज कोई भी सदस्य अपने मृत्यु पश्चात कितना पैसा जीएसओ को दे सकता है, तो आज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की जो हमारी लिमिट है, अभी रिसेंटली रिवाइज हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन काफी समय से 60 हजार रुपए साल की थी। तो भले मैं करोड़पति बन गया होगा, लेकिन मेरे मौत के बाद में मैं सिर्फ 60 हजार रुपया वन टाइम जीएसओ को दे सकता हूं। सो देर इज अ अपर लिमिट, कि ज्यादा कितना दे सकता हूं उसके ऊपर लिमिट है, कम कितना दे सकता हूं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मैं अपने विल में 60 रुपया भी जीएसओ के लिए छोड़ू तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलने वाला है। तो ये इसीलिए है कि जैसे यहां पर कहा है, whoever pays the piper is apt to call the tune। कोई चंद लोगों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अभी सोच लीजिए कि अगर समूह अपना पैसा नहीं भेजेंगे और ए मेंबर्स पैसा नहीं भेजेंगे, तो कुछ चंद लोग जो अमीर है, फेलोशिप में आने के बाद में ग्रेटफुल भी है और अमीर है, वो बोलेंगे चलो ठीक है यार, लोग नहीं दे रहे ना, हम लोग दे देते हैं लाख लाख रुपया। अभी 100 लोगों ने लाख लाख रुपया दे दिया, 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। अब ये खर्चा करने का जब ये सवाल आएगा, तो ये 100 लोग जो है ये डिटरमिन करेंगे, क्योंकि पैसा इनका है, तो यही बताएंगे कि ये पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए। और फिर हमारा जो निरपेक्षता है, क्या हमारा जो तटस्थता है, वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, और ये जो लोग जिसका पैसा होगा उसका हमको सुनना होगा। तो भले सर्विसेज में भी हम लोगों ने अपर लिमिट रखी हुई है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो
इसी में से जो जन्म होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पॉवर्टी है। कई लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हमेशा गरीब ही होना चाहिए। सो मैं यहां पर एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि ये गरीब ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे अस्तित्व का पर्पज जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ पर जो ट्रस्ट होते हैं, भारतवर्ष में जो हमारे ट्रस्ट होते हैं, ये ट्रस्ट का क्या कहना है कि आपने जिस कारणवश आपका ट्रस्ट बनाया है वो कारण के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च जमा करो और करोड़ों रुपए खर्चा करो, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं करोगे। आपके जो खर्चे हैं जो वाजिबी है वो जरूर करो आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को पैसे की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की को पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप पैसा नहीं दोगे तो पीड़ित शराबी तक संदेशा पहुंचेगा नहीं, किताबें छपेगी नहीं, पैम्पलेट बटेगी नहीं। तो इसके लिए तो पैसा चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट पॉवर्टी का प्रिंसिपल ये कहता है कि कितना भी पैसा आया, कल समझो हमारे पास में 10 लाख सदस्य हो गए और हर सदस्य ने साल के 1,000 रुपए देना चालू किया, तो 100 करोड़ रुपए का बजट जब भी होगा तभी भी वो पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो 100 के 100 करोड़ जो है वो पूरी तरह से शराबी की सेवा में अर्पित होनी चाहिए। इसका मतलब अभी तक जो शराबी को संदेशा नहीं मिला है उस तक संदेशा मिलने के लिए बड़ी और बड़ी मात्रा में खर्चा होना चाहिए, और ये पैसे का बचत करके उसके फिक्स डिपॉजिट्स या बड़ी बड़ी रकम या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं करना चाहिए। यानी कि एज एन इंस्टीट्यूशन एक एक जो ट्रस्ट है वो खुद अपनी प्रॉपर्टी, अपना डिपॉजिट्स, इससे अमीर नहीं होगा। वो भले करोड़ों आएंगे तो करोड़ों के करोड़ों वो खर्च कर देगा और दोबारा अपना बजट जो है वो जीरो बेस, यानी जो भी आया था पूरा खर्च कर दिया। या तो हमारे स्टाफ में जाओ या तो हमारे एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया, और हमने कुछ भी नफा नहीं कमाया, हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ये उसके पीछे का तत्व है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पॉवर्टी। इसीलिए समूहों को भी बताया जाता है कि भाई प्रूडेंट रिजर्व यानी कितना, तो एक समूह का जो भी आपका महीने का खर्चा हो, अगर किसी कारण जैसे अभी बीच में कोरोना आया और मीटिंग्स हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ पाए या उन्होंने किटी बॉक्स में पैसा नहीं डाल पाए, तो भी सेवाएं आपकी चालू रहनी चाहिए। इसके लिए 11 मंथ्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अभी जो सेवा के जो बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इंटर ग्रुप है, इंटर ग्रुप में समझ लो कि आपको कुछ भाड़ा है या आपका एक आधा मैनेजर है उसका पगार है। सपोज एक मैनेजर है जिसको हम लोग 6,000 रुपए कॉम्पेंसेशन स्टाइपेंड के तौर पर देते हैं, और बिजली वगैरह पकड़ के और एक 2,000 रुपए का ऑफिस का खर्चा है, तो 8,000 रुपए का अगर हमारा खर्चा है तो 11 महीने का यानी 88,000 रुपीज इतना मेरा प्रूडेंट रिजर्व होना चाहिए। ये पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो भी पैसा आया, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया, वो पूरा का पूरा एए के काम के लिए खर्च होना चाहिए। तो ये जो है प्रूडेंट रिजर्व, उसका तत्व जो है ये हमें आगे जाके वारंटीज में और हम कॉन्सेप्ट्स में इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमको सुनने को मिलेगी कि जितना हमें लगता है कि खर्च होने वाला है, और अगर आपातकालीन स्थिति में कलेक्शन नहीं भी हुआ, कंट्रीब्यूशन नहीं भी हुआ, तो भी हमारी सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो रखना जरूरी है उतना रखे, बचा हुआ पूरा जो है वो हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्य में खर्चा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक अद्भुत सी ऐसी स्थिति थी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस खुद ही के पैसे पे, अपने ही सदस्यों ने किए हुए कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, बाहर से 1 रुपया लिए बगैर पूरे दुनिया भर में आज 200 से ज्यादा देशों में ये उपलब्धि है। और हर जगह पे कई सारे जीएसओज है, कई सारे सर्विस बॉडीज है, कई सारे ऑफिस है, कई सारी भाषाओं में हमारा लिटरेचर छपता है। ये सब कुछ करोड़ों रुपए का सालाना हमारा हम सभी देशों का मिलके खर्चा होता है। हमारा वर्ल्ड लिटरेचर फंड है,
हमारा वर्ल्ड सर्विसेज ऑफिस है, इनका करोड़ों डॉलर्स का खर्चा है। तो ये सभी जो पैसा है, ये कोई भी 1 रुपया कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, ये सभी हमारे ही सदस्यों के किए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन में से हुआ है। इसका मतलब जब हम शराब से दूर हो जाते हैं और जब हम लोग किसी कारणवश हम पैशनेटली हम जब ये देना शुरू करते हैं, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल सामने क्यों नहीं हो, हम इसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक वैयक्तिक रूप से मैं अपना एक अनुभव यहाँ पर बताना चाहूंगा। बहुत साल पहले, मतलब 2000 साल में ग्रेग मूथ आए थे जीएसओ न्यूयॉर्क से, और उन्होंने जाने से पहले मुझे बोला कि भूषण कभी कन्वेंशन किया है? तो मैंने, तभी तक हमारे यहाँ पर कन्वेंशन नहीं होते थे, मैं बोला नहीं, ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, 60-70 हजार मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, और बड़ा जबरदस्त मीटिंग होता है, और ये अनुभव लेने जैसा है। तो अगली कन्वेंशन में तुम आ जाओ। तो मैं बोला कहाँ है अगली कन्वेंशन? उन्होंने बोला कनाडा में है, 2005 में है। तो मैं बोला अरे कनाडा तो बहुत महंगा होगा जाना आना। तो वो उन्होंने पूछा कि कितना खर्चा होगा ऐसे तुमको लगता है? तो मैंने डर डरते बोला कि लगभग 2-2.5 लाख रुपए का तो खर्चा होता ही होगा। तो जाने आने का भी मैं अगर पकड़ूं और वहां रहने का भी पकड़ूं तो 2-2.5 लाख रुपए तो खर्चा होता ही होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो तुम्हारे और तुम्हारे बीवी का भी, क्योंकि वो भी, अगर तुम आ रहे हो तो वो भी तुम्हारे साथ में आना चाहेगी, उसका भी पकड़ लो। तो हमने बोला ठीक है, 4 से 5 लाख रुपए। और तुम इतने दूर आओगे तो थोड़ा सा घूमोगे भी, कनाडा भी तो देखोगे, या और भी कहीं घूमना चाहोगे, उसका भी पैसा पकड़ो। तो मैंने और भी हिम्मत करके बोला मे बी 6-6.5 लाख रुपया। बोला हाँ। तो बोले अभी देखो, 2001 से 2006 तक तुम्हारे, 2005 तक तुम्हारे हाथ में 4 साल है, और 4 साल, 1 साल के 365 दिन। तो अगर तुम देखोगे ये 6 लाख रुपए को 4 साल में डिवाइड करोगे तो 1.5 लाख रुपया सालाना, यानी अगर तुम 365 दिनों से उसको डिवाइड करोगे तो जो भी कुछ मेरे ख्याल से 500-700 रुपया कुछ आ रहा था। तो ये तुम बाजू में रख सकते हो? तो मैंने बोला ये तो मैं आसानी से रख सकता हूँ। तो बोले वंडरफुल, देन सी यू इन कनाडा। तो बोलते मैं फिर मिलते हैं हम लोग कनाडा में। और पहली दफा मुझे रियलाइज हुआ कि वन डे एट अ टाइम मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने उस दिन के बाद में, वो जो भी रकम थी मुझे अभी इतना डिटेल में याद नहीं है, तो मैंने वो रकम रखना चालू कर दिया। मैंने एक रिकरिंग डिपॉजिट जैसा बना दिया, और धीरे धीरे अगले 4 सालों में तो मेरा बिजनेस में भी थोड़ा सा प्रगति हो गया, तो और भी थोड़ा सा सहयोग जैसे बनते गया, वैसे मैंने वो कन्वेंशन फंड करके वो फंड मैंने कर दिया। और दोस्तों, मैं और मेरी बीवी 2005 में ना कि सिर्फ कनाडा गए, बट हम लोग यूरोप में से गए, तो यूरोप में भी हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, और वहां से फिर हम लोग कनाडा में गए, कनाडा में भी हम लोग घूमे और वापस आ गए। ये सभी संभव होता है, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो संभव होता है अगर हम लोग छोटा 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 करके हमारा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना चालू करें, तो ये साध्य होता है। ऐसा ही एए का ही एग्जाम्पल अगर देना होगा, तो एए के भारतवर्ष के 50 साल पूरे होने को थे, और हमने डिसाइड किया था कि 2 बड़े इवेंट करेंगे। एक वेस्टर्न सबर्ब्स में एक इवेंट होगा, वेस्ट मुंबई इंटरग्रुप करेगा, और एक सेंट्रल सबर्ब में इवेंट होगा जो ठाणे में होगा। सो 2 बड़े सेलिब्रेशंस हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने सोचा कि 50 साल ये के हो रहे हैं, ढेर सारे लोग आएंगे। तो हमने एस्टिमेट किया था कि लगभग 500-100 लोग आएंगे, उनका खाना पीना, जगह, लाइट्स, पंखे,
वो साउंड सिस्टम, ये सब मिला मुला के वो इवेंट का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हो रहा था। और हमारा ठाणे इंटर ग्रुप तो बहुत छोटा था। अभी अभी हम लोग ईस्ट मुंबई इंटर ग्रुप से अलग हो गए थे। ना हमारे पास में पैसे थे, ना हमारे पास में इतनी संख्या थी सदस्यों की। और करे तो करना तो है। तो मुझे याद है कि हर एक समूह में हम लोगों ने एक एक किटी बॉक्स रखा था, कि जैसे ही अपना ग्रुप का किटी बॉक्स घूमे उसके बाद में एक ये 50 का जो अलग से किटी बॉक्स है वो घुमाया जाए। और हर एक मेंबर को अपील किया था कि आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कुछ कुछ सदस्य जो सिगरेट पीने वाले थे उन्होंने कुछ समय के लिए बीड़ी पी, लेकिन उतना पैसा जो बच गया वो उसमें डाला। ऐसा हर एक व्यक्ति ने वो थोड़ा 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 सहयोग करते हुए वो 1.5 लाख रुपया हम लोगों ने आसानी से इकट्ठा किया। और बड़े धूमधाम से ए के 50 ईयर्स का वो प्रोग्राम हम लोग कर पाए थे। तो इसका मतलब ये है कि एए मेंबर्स को उनकी पैशन को अगर जगाया जाए और उनको सामने कुछ पर्पस दिखाई दे तो पैसा आने में दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। अगर कारण दिखे और सबको अपने दिल से अपने एए पे प्यार है तो पैसा इकट्ठा होने में प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वो पैसा मांगने वाला चाहिए और मांगने के लिए वैसा पर्पस चाहिए। अगर सही कारण मिलता है, कोई ए का काम होने जा रहा है वो दिखता है, तो कोई भी ए मेंबर पीछे नहीं हटता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ए नहीं होती तो मैं शायद आज का जो खुशहाल जिंदगी है वो जीने के लिए जिंदा भी नहीं रहता। तो पैसे का क्या करना था। और अगर ए नहीं होता तो जो भी मैं कमाता था वो पूरी तरह से मैं शराब में उड़ा के ऊपर से कर्जे भी लेकर मैं शराब में डाल रहा था। तो आज अगर मेरी सैनिटी और मेरी सेरेनिटी की कोई कीमत करने जाए तो ये तो कीमत हो ही नहीं सकती। तो आज अगर मेरी ए को जरूरत है या मेरे किसी पीड़ित भाई को जरूरत है और मैं खड़ा नहीं हूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप ये 7वीं परंपरा जो है इसका महत्व इसके लिए है कि अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में हम लोगों ने इस परंपरा की ताकत को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर एक्सेस पैसे आ जाते हैं किसी सर्विस बॉडी के पास, तो हमको काम करने की अभी आदत ही नहीं पड़ी है। तो हमारे सामने कोई ध्येय ही नहीं है, हमारे सामने कोई गोल ही नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे किसी सर्विस बॉडी में एक समझा कि उन्होंने हर एक समूह को बोला है या हर एक अंतर समूह को बोला है कि आप कुछ भी पीआई का काम करो आपको 15,000 देंगे। अरे ऐसा उल्टा कभी से गंगा बहने लगी। हमारे जीएसओ से या स्टेट कमिटी से या और किसी बॉडी से ग्रुप की तरफ पैसा नहीं आता है, ग्रुप से पैसा ऊपर जाता है। सबसे टॉप पे है ग्रुप। ग्रुप अपने एरिया का जो भी खर्चा है वो जो काम है वो काम करे, उसके बाद का सरप्लस अंतर समूह को दे। अंतर समूह अपने एरिया का जो भी काम है वो करे, इसके बावजूद सरप्लस बचा तो जीएसओ को भेजे। और जीएसओ में जो सरप्लस बचता है अगर जो खर्चा करने के बाद में, तो वो इंटरनेशनल वर्ल्ड फंड को भेजता है। उल्टा नहीं होता, जीएसओ इंटर ग्रुप को पैसा नहीं भेजता या जीएसओ स्टेट कमेटी को या स्टेट कमेटी इंटर ग्रुप को पैसा नहीं भेजते है। ये फ्लो ऑफ मनी ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ ऊपर। तो ये अगर रिटर्न पैसा भेज रहे इसका मतलब उनके पास में कोई योजना नहीं है, उनके पास में प्लान कुछ नहीं है, उनके पास में पैसा खर्चा करने के लिए कोई काम करने के लिए टाइम टैलेंट या ट्रेजर देने के लिए, ट्रेजर तो है लेकिन टाइम और टैलेंट देने के लिए नहीं है। ये इसका मतलब होता है। सो दोस्तों, जब भी हम लोग स्वावलंबन की बात करते हैं, हम लोग सेल्फ सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये सेल्फ सपोर्ट सिर्फ ये किटी बॉक्स तक या हमारे पैसे तक नहीं है, लेकिन हमारी सेवा भी हम ही करेंगे। अगर मैं सोचूंगा कि मेरा काम हो गया, मेरी सोपरेटी हो गई, अभी मैं नौकरी को लग जाऊंगा, अभी मैं धंधे को लग जाऊंगा और ये बूढ़े लोगों को सेवा करने दो, तो दोस्तों एक ही सेवा कभी भी मॉडर्न नहीं होगी, कभी भी इफिशिएंट नहीं होगी, कभी भी एनर्जेटिक नहीं होगी। मैं ना पैसे दूंगा, ना समय दूंगा, ना मेरी जो टैलेंट है। आज हमारे पास में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं, जो एडवर्टाइजिंग जानते हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारे एए को घर घर तक पहुंचाने के तरीके जानते हैं, लेकिन इनके टैलेंट एए के लिए क्यों नहीं काम कर रही है, इनके टैलेंट का हम लोग एए के लिए क्यों नहीं लाभ कर पा रहे। क्योंकि
lack of understanding, true understanding of the self support provision. हम बाहरी मदद ले नहीं सकते हैं, बाहरी प्रोफेशनल मदद लेने के लिए जो पैसा लगेगा उतना पैसा देने की हमारी क्षमता नहीं है। तो इस वजह से ना हम बाहर की मदद ले रहे, ना हम खुद कर रहे, और हम वही के वही फंसे हुए हैं। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सातवीं परंपरा का अगर सही अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज जो इतने सालों के बाद में हम लोग सिर्फ 50-60 हजार मेंबरों की बात कर रहे हैं, दोस्तों हमारे 50-60 लाख सदस्य होने चाहिए थे, क्योंकि एस्टिमेटेड 5 करोड़ शराबी है भारतवर्ष में। तो अगर हम लोग रिहैब सेंटर में से डिस्चार्ज होने वाला और साइकेट्रिस्ट के पास से जाने वाला हर एक पेशेंट अगर रिहैब सेंटर हम लोग ए में ला सके तो दोस्तों हमारी भी संख्या ये लाखों में होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें सभी को जागना है और ये सेल्फ सपोर्ट को पूरी तरह से समझना है और उसका समर्थन करना, उसको सपोर्ट करना है। तो यही कुछ चंद चीजें थी आपके साथ में शेयर करनी थी, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। दोस्तों मीटिंग का समय ऑलमोस्ट हो चुका है, हमारे पास 1 मिनट है, अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ए से जुड़ा हुआ या कोई कोई भी प्रश्न। पॉइंट मेरे से रह गया होगा तो शेयर भी कर सकते हैं। 10-30 साइड वाला समझा दो ना, कैसा पैसा रहने का, 10-30 साइड वाला कैसा फंड देने का। अगर बहुत से ग्रुप में पैसा होता है तो किस तरीके से जीएसओ को कितना देना, फॉरवर्ड कितना रखना और इंटर ग्रुप को कितना देना। कई हमारे समूह जो है मेमो टू एन इंटर ग्रुप ट्रेजरर करके एक पैम्पलेट है, वो बात करता है। वैसे ही कई पैम्पलेट्स है जो ट्रेजरर को उद्देशित है। तो अलग अलग प्लान्स लोग फॉलो करते हैं। एक बड़ा प्रचलित प्लान हमारे यहाँ पर है जो 60-30-10 प्लान है, यानी 60 जो भी पैसा किटी बॉक्स में से आता है उसमें से 60% पैसा जो है वो समूह अपने इस्तेमाल के लिए यूज करे, 30% है वो हमारे अंतर समूहों को दे, और 10% जो है वो जीएसओ को दे। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जब भी राज्य सेवा समिति हुई यानी स्टेट कमेटी बनी, तो कई सारे समूहों ने प्लान चेंज कर दिया कि हमारे समूह का खर्चा पूरा होने के बाद में जो सरप्लस बचा, वो सरप्लस में से 60% जो है वो हमारे अंतर समूह को जाएगा, 30% जो है वो स्टेट कमेटी को जाएगा, और 10% है वो जीएसओ को जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अभी अंतर समूह का देखते हैं, हमारे ठाणे अंतर समूह में सिर्फ 10 समूह है। तो अगर हमारे 10 के 10 ग्रुप्स का सरप्लस का 60% आता है, समझो हर समूह का महीने का 1000 रुपए का सरप्लस है अपने खर्चे जाने के बाद में, तो 10,000 रुपए का सरप्लस अगर टोटल होता है, उनमें से 60% यानी 6,000 रुपया ठाणे अंतर समूह को मिलेगा। तो वो 6,000 रुपए में से वो अंतर समूह का जो भी भाड़ा है, मैनेजर का पगार है, और उनको जो भी पीआई वगैरह रिलेटेड काम करने हैं, कुछ पैम्पलेट वैम्पलेट बांटने हैं, ये सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो इतना तो बजट उनको चाहिए, नहीं तो अंतर समूह बनाया क्यों है? उनकी इतना भी पैसा नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं। तो अंतर समूह को देने वाले लोग ग्रुप्स जो है वो एकदम ही सीमित रहते हैं, इसके लिए वो 60%। फिर स्टेट को कंट्रीब्यूट करने वाले उससे ज्यादा है, यानी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 450-500 समूह पूरे महाराष्ट्र में है। तो यही समूह है जो है वो स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते। तो अगर स्टेट लेवल का काम करने का है तो अगर हर एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि हर एक समूह का जो भी सरप्लस है उसमें से 30% यानी 300 रुपया, तो 500 समूह अगर 300 रुपया अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो स्टेट कमेटी के पास में रीजनेबल बजट होगा कि वो अपना काम कर सकते हैं। और जीएसओ को सभी 2800 जो 3000 समूह है वो सभी के सभी अगर 10% जीएसओ को भेजते हैं, यानी जो 100 रुपया बचा
वो अगर 3,000 समूह अगर हर महीने भेजते हैं तो 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन जीएसओ को हर महीना आ सकता है, जिससे उसको उसके जो काम है उसमें मदद हो सकती है। तो जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स उतना कम परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये उसके पीछे का लॉजिक है। लेकिन कई समूह ऐसे भी है जो इक्वल रेशियो में करते हैं, यानी मेरे पास 1,500 रुपए का सरप्लस बच गया तो 500 इंटर ग्रुप को, 500 स्टेट कमेटी को और 500 जीएसओ को, ऐसे देने वाले भी कई सारे समूह देखे हुए। वो हर समूह अपने ग्रुप कॉन्शियस से डिसाइड करेगा कि कितना पैसा कौन से सर्विस बॉडी को भेजेंगे और कौन सी सर्विस बॉडी के पास से क्या काम हो रहा है, उस किसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से भी वो अपने कॉन्शियस से अपना निर्णय बदल सकते हैं।